شریف صاحب سے کہ کون عمران خان صاحب کی زندگی کی ضمانت لے گا, کون بشرا بی بی کی زندگی کی ضمانت لے گا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا بی بی شوٹ اپ ہوا ہے. تحریک تھی, مائک بند کریں. یہ تحریک شروع ہوئی تھی انقلاب لانے سے, نظام بدلنے سے. میں وزیر اعظم نہیں مانتا, میں صدر نہیں مانتا, میں اسمبلی نہیں مانتا, میں الیکشن نہیں مانتا, میں چیف جسٹس نہیں مانتا, میں چیف آرمی سٹاف نہیں مانتا. اب یہ بات آ گئی ہے ملاقات تک. خان صاحب کی صحت خراب رہی ہے سر, آپ نے ان کو کیا فیسلٹیز دی ہے, آپ نے کیوں ان کو ہسپتال شفٹ ہی کیا گیا؟ ورنہ حالات تو یہ ہے کہ پمس میں صدر زرداری صاحب کے لیے پورا بلاک مختص ہوا تھا. اسی پنجاب میں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے لیے پورے بلاک مختص ہوتے, اور آپ ہمیں آئین اور قانون سمجھا رہے ہیں. اب ان کی سیاست جو ہے وہ انسانی ہمدردی کارڈ پہ, ملاقات پہ, بچوں کی کو آنے نہیں دیتے. ہمیں پھر میں حیران ہوں جناب چیئرمین, لوگ اپنے بزرگوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, لیڈر کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے, اس کو صحت دے. یہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ہر چوتھے دن افواہ پھیلاتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ نہ جانے وہ شاید زندہ. پاکستان کی سیاست میں نیا موڑ, مشال یوسف نے گیم پلٹ دی, طلال چودھری کو تھپڑ دے مارا. طلال چودھری کا کہنا تھا پہلے تم لوگ کہتے تھے حکومت جعلی ہے, وزیر اعظم جعلی ہے, ابھی خان سے ملنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. اس کا پہیا گھومتا ہے. عمران خان نے بھی اپنی حکومت کے دوران ہمارے سب کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے تھے. پی ایم بی بی کو اس کے باپ کے سامنے ذلیل کیا, رانا ثناء اللہ کے اوپر گھٹیا الزامات لگائے. ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا. بس یہ کہنے کی دیر تھی, مشال یوسف کا پارا ہی وہ کر دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. چلیں ناظرین, پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. کہ آدھے ججز آپ کے, آدھے ہمارے. آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں ججز کی, آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی باتیں لگائے نا, کیوں نہیں لگا رہے اپیلیں؟ آپ یہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں لا منسٹر صاحب کہ جب خواتین کے معاملے میں سزا میچور ہو جاتی ہے تو سسپینشن آف سینٹنس نہیں لگایا جاتا؟ کیوں نہیں لگایا جاتا سر؟ کاتوں کا آپ کو جو باتیں پسند آتی ہیں سر, آپ باتیں سنیں. کیسے شکریہ سر؟ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا. نہیں سر, 5 منٹ سے 1 منٹ بھی زیادہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 7 منٹ بات کی ہے, میں 7 منٹ بات کروں گی سر. آپ مجھے 1 منٹ اور دیں سر. سر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں. مائک بند کریں جی. سینیٹر طلال چودھری صاحب. جی مشال یوسف زئی. چیئرمین صاحب, حکومت بڑی ڈٹائی سے ہمیں ایکسکیوزز دے رہی ہے. عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر, ایک سابق وزیر اعظم, جس نے اس ملک کے غریب عوام کو 3 کینسر ہسپتال دیے, صحت انصاف کارڈ دیا جس نے اس ملک کے 43 ملین فیملیز کو اکموڈیٹ کیا, اور آج وہ خود اپنے لیے صحت کا انصاف مانگ رہا ہے. آج وہ خود اپنے لیے علاج مانگ رہا ہے. آج وہ اپنی اہلیہ کے لیے علاج کی سہولت مانگ رہا ہے. یہاں پہ باتیں ہوئی سر, میں شروع کروں گی رانا ثناء اللہ صاحب پہ. انہوں نے کہا, لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہا کہ خان صاحب کی صحت کا بی پی کا مسئلہ ہوا ہے تو میں نے چیک کرایا اور مجھے کہا گیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو سر اپنے سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو سیک کرے, کیونکہ وہ آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے. اسی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل نے آج سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو صحت کے سنگین صورتحال سے وہ فیس کر رہے ہیں, اور ان کو بہت سے چیزیں درپیش ہے جن میں ایک بی پی ہے, اور جس کے لیے ان کا علاج کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کا علاج اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکتا. ان کے لیے کچھ فیسلٹیز درکار ہے جو حکومت ان کو نہیں دے رہی ہے. پھر یہاں پہ بات ہوئی, ہمارے لا منسٹر صاحب نے بات کی کہ جی عدالتوں میں یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس پہ بات نہیں کر سکتے. سر کن عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے قانون ہے, ہمارے لیے آئین ہے, اور آپ کے نواز شریف صاحب کے لیے بائیو میٹرک کی مشین اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچائی جاتی ہے. آپ ان عدالتوں کی بات کر رہے ہیں, آپ ان عدالتوں کی بات کر رہے ہیں جو ہم سے ضمانتیں مانگتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے. کون ان کی زندگی
जिंदगी की जमानत लेगा। तो आज मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहती हूँ कि पूछे शहबाज शरीफ साहब से कि कौन इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत लेगा, कौन बुशरा बीबी की जिंदगी की जमानत लेगा। आप खुद कह रहे हैं कि उनका बीबी शूट अप हुआ है, हम उनके लिए फैसिलिटीज देंगे, आप किसकी? मैडम चुप कर जाए, बैठ जाए। हमें पता है आपको दो तीन जिम्मेदारियां दी है, आपकी ड्यूटी बड़ी सख्त है। एक्सपंज करो। सही है सर, मुझे तो लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर आए। आराम से सर, बहुत है आराम से। फिर इन्होंने बात की, सर सुने, फिर इन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक खान साहब की सेहत खराब रही है। सर आपने उनको क्या फैसिलिटीज दी है? आपने क्यों उनको अस्पताल शिफ्ट ही किया गया? वरना हालात तो ये है कि पिम्स में सदर जरदारी साहब के लिए पूरा ब्लॉक मुख्तस हुआ था। इसी पंजाब में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के लिए पूरे ब्लॉक मुख्तस होते, और आप हमें आईन और कानून समझा रहे हैं। सर फिर आपने यहाँ बात की, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की कि जी उनका ट्रायल हुआ, उनका एविडेंस हुआ, उनका विटनेस हुआ, और फिर क्या हुआ? सर हिम्मत है तो लगाए ना अपीलें, क्यों नहीं लगा रहे? आप लोग तो जजेस के लिए लड़ रहे, आप तो समरी से पहले डीले करते हैं कि आधे जजेस आपके आधे हमारे। आप बातें कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं जजेस की, आप हमें बता रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें, लगाए ना, क्यों नहीं लगा रहे अपीलें? क्या आप मुझे बता सकते हैं लॉ मिनिस्टर साहब कि जब खवातीन के मामले में सजा मैच्योर हो जाती है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं लगाया जाता? क्यों नहीं लगाया जाता सर? क्योंकि इनको पता है कि जब अपीलें लगेंगी और जब तक हमने उनके लिए नई कानून साजी ना कराई होगी तो ये तो एक्विट हो जाएंगे, लेकिन इसलिए ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं। सर आज मेरे लीडर की सेहत की बात है, आज चूंकि हम यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को शायद ये बात नहीं पता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके सर कंक्लूजन पे आती हूँ सर हौसले सर, सुने सर, हमारा लीडर मुश्किल में, उनकी ज़िंदगी की बात हो रही है, कैसे मैं कंक्लूड करूं? आप इनको जेल में से अस्पताल शिफ्ट करें, मैं अभी कंक्लूड कर देती हूं। आप दें ना वर्डिक्ट, नहीं दे सकते तो सुने फिर हमारी बात। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब ने बात की सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, कमिश्नर इस्लामाबाद ऑर्डर करेगा और सुपरडेंट अडियाला जेल ऑर्डर करेगा। कमिश्नर इस्लामाबाद किसके नीचे आता है सर? इस हुकूमत के नीचे आता है। या तो बताएं कि वो हमारे नीचे नहीं आता तो हम मान जाएंगे कि ठीक है आपके नीचे नहीं आता, लेकिन सुपरडेंट अडियाला जेल के पास इख्तियार है मुलाकात। ये आपकी और हुकूमत के दरमियान तय हुआ है सारी चीजें। जी सेनेटर तलाल चौधरी साहब। जी चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच। जी चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है जी प्लीज कि ये जो तहरीक थी, माइक बंद करें, ये तहरीक शुरू हुई थी इनकलाब लाने से, निज़ाम बदलने से। मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता, मैं सदर नहीं मानता, मैं असेंबली नहीं मानता, मैं इलेक्शन नहीं मानता, मैं चीफ जस्टिस नहीं मानता, मैं चीफ आर्मी स्टाफ नहीं मानता। अब ये बात आ गई है मुलाकात तक कि एक है कानूनी ऑर्डर इन द और इंसानी मामला, दूसरा है उसको सियासी एजेंडा बनाने का मामला। जनाबे चेयरमैन, अब इनकी सियासत जो है वो इंसानी हमदर्दी कार्ड पे, मुलाकात पे, बच्चों की को आने नहीं देते हमें। फिर मैं हैरान हूँ जनाबे चेयरमैन, लोग अपने बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, लीडर के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उसको सेहत दे। ये सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो हर चौथे दिन अफवाह फैलाते हैं कि उसकी जान को ख़तरा है और वो ना जाने वो शायद ज़िंदा ही नहीं है। और ये सारा कुछ किसके गिर्द घूमता है? क्या क्या ट्राई नहीं किया? 9 मई, 26 नवंबर, इस्तीफे, असेंबलियाँ तोड़ी, इलेक्शन नहीं मानता मैं, हम पार्लियामेंट नहीं मानते, और बात अब आ गई है एक मुलाकात तक। गुजारिश ये है, मुलाकात तो एक जेन मैनुअल और कानून के मुताबिक होगी। जनाबे चेयरमैन, सुबह 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें रिट पिटीशन लगाई गई है इनकी, जिसमें मीटिंग और मेडिकल दोनों के बारे में सुबह रिट लगी है, उसमें अडियाला जेल के सुबर्न ने अपनी डिटेल रिपोर्ट जमा करवाई है।
उस डिटेल रिपोर्ट में उन्होंने इनकी सेहत के मुताल्लिक, इनकी मुलाकातों के मुताल्लिक, इनकी लिविंग कंडीशंस के मुताल्लिक एक एक चीज़ बताई है। उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब की मुलाकातें 84 दफ़ा हुई हैं, 84 टाइम्स। इतनी मुलाकातें उनकी घर नहीं हुई जितनी उनकी वहाँ करवाई गई हैं। गुजारिश ये है, उसके अलावा उनकी मुलाकातों के साथ उनकी लिविंग कंडीशंस, उनकी मेडिकल कंडीशंस, उनको कौन कौन सी सहूलतें दी गई हैं। अब बात यह है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया। उसमें बानी पीटीआई के वकील जो हैं उन्हीं को मुकर्रर करके सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा। जेल गए, उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया। अब बात यह है, मुलाकात गले पे अंगूठा रख के, मुलाकात डिक्टेट करवा के, मुलाकात क्योंकि आपके पास सियासी एजेंडा कोई नहीं, असेंबलियां तोड़ी कोई फ़ायदा नहीं, इस्तीफे दिए कुछ नहीं निकला, 9 मई कुछ नहीं निकला, 26 नवंबर कुछ नहीं निकला, ज़िमनी इलेक्शन हार गए, कुछ नहीं निकला। अब रह गई है हमदर्दी कार्ड। कभी कहते हैं हमारे बच्चों को आने नहीं देते, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, उनके नाइकॉप्स वैलिड हैं नाइकॉप्स दोनों बच्चों के, बानी पीटीआई के दोनों बच्चों ये के, सब कुछ कंसेंसस से हुआ है आप दोनों की तरफ। दोनों बच्चों के आप बलडोज नहीं कर सकते हो। जनाब चेयरमैन, बानी पीटीआई के दोनों बच्चों के वैलिड नाइकॉप कार्ड्स हैं, उन्हें कौन रोकता है? 3 साल हो गए, 3 साल वो अपने बाप से मिलने नहीं आए। वो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बना दिया जाता है। गुजारिश ये है जनाब चेयरमैन, ये जो मामला है, दूसरा इसमें सियासी रवैया अख्तियार करे। ये सियासी रवैया, अपनी बात, हमारी बात नहीं सुननी, अपनी बात करनी है। अभी यानी अब ये हालात मीडिया ने देख लिया, आपका वीडियो भी बन गई, तस्वीर भी बन गई, खबर भी बन गई। जी जनाब चेयरमैन, जो मुज़ाकरात हैं उसकी मेज़ से कौन उठ के गया है? ये उठ के गए, उस मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। प्राइम मिनिस्टर की कमेटी जो है वो इंटैक्ट है, मौजूद है, स्पीकर साहब का ऑफिस मौजूद है, आए बात करें और आगे चलते हैं। लेकिन किसी डिक्टेट करने से, किसी आप गले में अंगूठा या समझें कि भी आप ऊपर से उतरे हुए अपनी मर्जी करेंगे, मुलाकातें जेल मैनुअल से और अदालती हुक्म के मुताबिक। इकराम, आपने मिशाल यूसुफ और तलाल चौधरी की गुफ्तगू सुनी, आपने सुना कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए। इसमें कोई शक नहीं है, मिशाल यूसुफ का जो मुतालबा है वो जायज है। बिल्कुल इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए, तौर जिंदगी पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इंसानियत को आगे रखना चाहिए। इमरान खान और पीटीआई के बिल्कुल जायज मुतालबा, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जितनी यानी कि सहूलियात है इतनी जेल में नहीं है। जितना हॉस्पिटल में ख्याल रखा जाएगा इतना जेल में नहीं रखा जाता। नाज़रीन, ये भी हकीकत है, आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, पीछे भी यही कुछ होता आ रहा है। जिसने भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासतदान हो, बच्चा वो भी नहीं है कि इमरान खान की जिंदगी के अहम तरीन साल, 2.5-3 साल हो गए इमरान खान को जेल में। जो 2.5-3 साल जाया हुए वो दोबारा जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। इसीलिए सियासी इंतकाम में कुछ भी नहीं रखा। हमारे सियासतदानों को चाहिए, सियासत होनी चाहिए, इंतशार वाली सियासत नहीं। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां, इनको चाहिए एक तरमीम पास कराएं जिसमें लिखा हो जिसकी भी हुकूमत बने सब उसको तस्लीम करेंगे, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। कोई भी मुल्क को तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अंदर से स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारे पाकिस्तान में सियासी जंग चल रही है, हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन
पर अभी भी काम करना बाकी है। सियासी इंतकाम उसको आगे रखना होगा, यानी कि उन मसाइल को। लोग ये भी जानते हैं हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई अरूज पे, उसमें पाकिस्तान के गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे सियासतदानों को चाहिए इस चीज से बाहर निकलना होगा। अगर बाहर निकलेंगे फिर ही मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में लाजमी किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।